Welcome back, my dear learners of class 11th. Let us study one more poem from your syllabus, that is Childhood. Childhood, written by Marcus Nathan. And this is the very particular poet about whom no information is actually available. No information is actually available in the sense that we do not have lots of information available about this very particular poet, my dear learners. So, since just a good amount of information or just no sufficient information about this very particular writer or the poet is available, so I'm just straightway going to discuss with you in detail all about the lines of the first two stanzas of this very particular poem. This very particular poem is divided into 5 stanzas. First 4 stanzas contain actually 6 lines each, whereas the last concluding stanza of the poem contains only probably 4 lines, my dear learners. In this very particular poem, this poet is actually pondering over the loss of his childhood. Is actually trying to locate or trying to find out that time or day or that year he lost his childhood. Why? Because this poet to some extent is not sure the day or the date or the time he lost his childhood. That's why he says, was it the day when he became 12 he lost his childhood, or was it the day just he came to understand or he realized that hell and heaven actually do not exist in this world, or the day he just realized, the day when he realized that the people of this world, though they look very good, very loving and very decent, but in reality they are not decent at all, but they are hypocrites, was that day he lost his childhood. In this way, he actually discusses over lots of things and lots of incidents, actually to come on to this very particular just a conclusion, or to determine that very particular day or date or time or stage he lost his childhood, my dear learners. So my dear learners, let's look at the first 2 stanzas of this poem line by line and try and understand the day he lost his childhood or the time he lost his childhood, and with that all the innocence, the loveliness of that very particular stage disappear forever. Let's look at this poem. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Ceased means stopped. So कह रहा है, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? कह रहा है मेरा बचपन कब चला गया? क्या उस दिन खत्म हो गया जिस दिन मैं 11 साल का न होकर के 12 साल का हो गया? जिस दिन मैं 12 का हुआ, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that day? तो कह रहा क्या उस दिन, जिस दिन मुझे ये पता चला कि heaven और hell actually they do not exist, वो actually में होते ही नहीं हैं. They are simply a kind of a concept, a kind of a mindset, or the kind of abstract things. कि heaven or hell actually abstract हैं. They are the creation of the mind of the humans,
कि ये मानव के जो है, ह्यूमन के जो दिमाग के दो क्रिएशंस हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्चुअली हेवन और हेल, और सिंस ये है ही नहीं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वी शैल नॉट फाइंड देम इन जियोग्राफी, इन्हें हम जियोग्राफी में नहीं पाएंगे, और इसीलिए हम इन्हें वर्ल्ड मैप में भी नहीं पाएंगे, हेवन और हेल को। तो कह रहा क्या, जिस दिन ये मेरे साथ, जिस दिन मुझे ये पता चला कि एक्चुअली हेवन और हेल तो होते ही नहीं, क्या उस दिन, जिस दिन ये मैंने रियलाइज किया, जिस दिन मुझे ये पता चला, क्या उस दिन मैंने अपना बचपन खो दिया या मेरा बचपन चला गया? सो सी, in the first stanza of the poem, actually the poet of this poem is trying to rationalize the loss of his own childhood, and the innocence of that childhood, my dear learners. So here he is trying to rationalize the loss of his own childhood. He says, was it the day when he became 12, he lost his childhood, or was it the day when he realized, or when he understood that heaven and hell are the two concepts of the human mind, and actually they do not exist on this very particular planet, that is Earth, and that's why they are not found in geography nor on the world map. So he says, क्या ये वो दिन थे, ये वो टाइम था कि जब इसने अपना बचपन खो दिया, इसका बचपन चला गया? तो देखिए पहले स्टैंजा में वो रैशनलाइज कर रहा है अपने बचपन के खोने को, माय डियर लर्नर्स। तो उसकी रैशनैलिटी, द मोर ही ग्रो इन मैच्योरिटी and the more he grew in knowledge and understanding and rationality, जितनी ज़्यादा रैशनैलिटी इसके अंदर आती है, उतनी ज़्यादा उस वक्त उसको ये रियलाइज होता है कि उतनी दूर वो अपने बचपन से होता गया है, यानी कि उसका वो बचपन, उसका वो इनोसेंस, वो मासूमियत, और उस सारी डेलिकेसीज, वो सारी ब्यूटीफुल थिंग्स जो हमारे साथ एसोसिएट होती हैं हमारे बचपन में, वो जा चुकी हैं। ये कोशिश कर रहा है ये पता लगाने का एग्जैक्ट कि कब इसका बचपन चला गया। क्या उस दिन जब वो 12 का हो गया? क्या उस दिन जिस दिन उसे ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली हेवन और हेल तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो इंसान के द्वारा, इंसान के दिमाग के दो क्या हैं, ये जो थिंकिंग्स हैं, एक तरह का कह सकते हैं इल्यूजन है, एक्चुअली में ये तो होते ही नहीं हैं, इसलिए वो जियोग्राफी में नहीं मिलते, इसलिए वो वर्ल्ड मैप में नहीं मिलते। तो क्या रहा, जिस दिन ये रियलाइज हुआ उस दिन बचपन गया इसका। आगे देखते हैं हमारे रियलाइज कह रहा है, यहां तक तो आपको क्लियर है पहला स्टैंजा, कि कह रहा है कि जब ये हेवन और हेल, जैसे यहां कह रहा है देखिए, was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography। कह रहा क्या जिस दिन मुझे ये पता चला कि एक्चुअली हेवन और हेल तो होते ही नहीं हैं, ये क्या है, ये हमारे दिमाग के इल्यूजन है, ये हमारी सोच है, हमारे दिमाग का एक तरह का ये क्या है, इल्यूजन है, और चूंकि ये होते ही नहीं हैं इसीलिए कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, इसीलिए ये जियोग्राफी में मिलते नहीं हैं, और and therefore could not be, और इसी कारण ये होते ही नहीं हैं, they are not in existence। Why? Because they are only and only the illusion of the human mind, कि human mind ही सिर्फ और सिर्फ illusion है या creation, इसलिए होते ही नहीं हैं। Was that day, क्या कह रहा, क्या ये वो दिन था जिस दिन मैंने अपना बचपन खो दिया? अगला देखते हैं, अगला सेकंड स्टैंजा माय डियर। बट माय डियर लर्नर्स, बिफोर गोइंग इनटू द सेकंड स्टैंजा, पहले हम इस फर्स्ट स्टैंजा में देखते हैं कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज है। पहले तो देखिए इसमें वो क्या कर रहा है, वो रैशनलाइज कर रहा है अपने बचपन के खोने को, कि कैसे ही ग्रू इन रैशनैलिटी, because he was growing in age, and since he was growing in age, actually he was growing in knowledge and he was growing in understanding।
And since he was growing in age, he was growing in knowledge, he was growing in maturity, he was getting away and away from his innocence of the childhood. यहाँ देखिए कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच माय डियर लर्नर्स यहाँ पे आ रहे हैं, एक बार हम लोग देखें। देखिए पहले तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए, ये जो पोम का सेकेंड लाइन है, was it the day, यहाँ देखिए दोनों पोम की जो सेकेंड और थर्ड लाइन है was it the से शुरू हो रही है माय डियर लर्नर्स। सो अगर जो पोम की एक से ज्यादा लाइन किसी एक वर्ड या फ्रेज से शुरू हो रही है, दिस इज एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा माय डियर लर्नर्स। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड लाइन में एनाफोरा यूज किया गया है, यूज हो रहा है माय डियर लर्नर्स। और देखते हैं, was it the day I ceased to be 11, was it the time। तो यहाँ पर देखिए माय डियर लर्नर्स, यहाँ पे देखिए ये द वर्ड और टाइम वर्ड, दोनों वर्ड टी लेटर से शुरू हो रहा है, यानी कि दोनों वर्ड में टी का साउंड है शुरू में। फिर देखिए हेल और हेवन, दोनों एच से शुरू हो रहे हैं, यानी कि इस लाइन में हमारे पास क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच माय डियर लर्नर्स, एलिटरेशन। अब दूसरा चीज इसमें और भी फिगर ऑफ स्पीच है, देखिए हेल एंड हेवन, टू ऑपोजिट थिंग्स आर सेट साइड बाय साइड, दो ऑपोजिट वर्ड्स को यहाँ पे साइड बाय साइड रखा गया है कि यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑक्सिमरॉन भी है, ऑक्सिमरॉन, साइड बाय साइड ही हेल एंड हेवन, दूसरे एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। प्लस ये एक एंटीथेटिकल स्टेटमेंट भी पोएट का हो सकता है, क्यों, क्योंकि पोएट को यहाँ रियलाइज होता है कि actually there is no place that can be called heaven, actually there can be no place that could be called actually hell. We can make a certain, this very particular world a heaven, or we can make it a hell by our wrongdoing or by all a bad doing. So इसका एक कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो ये ऑक्सिमरॉन और एंटीथेटिकल दोनों हो सकता है। Could not be found in geography, एक बार आप देखिए, could में ओ का साउंड, नॉट में ओ का साउंड, फाउंड में ओ का साउंड, यहाँ पे भी ओ का साउंड, यानी कि बार बार ओम की इस लाइन में, यानी कि जो फोर्थ लाइन है उसमें बार बार हमें ओ का साउंड मिल रहा है माय डियर लर्नर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एसोनेंस भी पोम में यूज किया गया है, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी जस्ट वाज दैट डे। यहाँ देखिए दैट में थी, द में थी, यानी कि यहाँ पे फिर से क्या है, एलिटरेशन। सो माय डियर लर्नर्स, ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एलिटरेशन, फिर यहाँ पे देखिए ऑक्सिमरॉन या एलिटरेशन या एंटीथेटिकल स्टेटमेंट, फिर यहाँ देखिए ओ का साउंड यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसोनेंस है। फिर यहाँ पे देखिए दैट और द दोनों टी से शुरू हो रहा, तो एलिटरेशन। तो ये कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो पोम के फर्स्ट स्टैंजा में यूज किए गए हैं माय डियर लर्नर्स। नाउ लेट्स लुक द सेकंड्स, नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड line by line. When did my childhood go? Was it the time I realized that idylls were not all they seem to be? आप देखिए यहाँ से क्या कह रहा, फिर वही क्वेश्चन को दोहरा रहा माय डियर लर्नर्स। तो आप कह सकते हैं When did my childhood go? Was it the day? ये जो दो लाइन्स हैं ये पोम में टाइम एंड अगेन यूज हो रही है, टाइम एंड अगेन कमिंग। इट मीन्स अगर जो कोई पर्टिकुलर लाइन बार बार पोम में यूज कर रही होती हो रही होती है, एंड दैट होल्ड्स द की
and that whole the central idea or a whole the key point of the poem, that is called, my dear learners, refrain. REFRAIN, refrain. So ये दो लाइनें पोम की रेफरेन भी हैं. तो कह रहा है, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? तो कह रहा है कि क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जिस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो एडल्ट्स हैं, ये जो ग्रोन अप पीपल हैं हमारे आसपास या जिन उन बड़े लोगों के साथ जिनके साथ ये बड़ा हुआ, ये जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं. ये जैसे दिखते हैं उसके वैसे एब्सोल्युटली ऑपोजिट, उल्टा है. यानी कि बचपन में हम पहचान पाते हैं कि what is hidden behind the smile of a man, how lethal and dangerous that man can be behind that smile on his face. यानी कि बचपन में जो हमारी अप्रोच ऑफ थिंकिंग होती है या जो हमारा परसेप्शन एक्चुअली होता है अबाउट द पीपल, एक्चुअली अबाउट द ग्रोन अप पीपल, बहुत ही डिफरेंट होता है. व्हाई? बिकॉज सिंस वी आर वेरी मच innocent, we are very much pure, since we are very much good. क्योंकि एक छोटा बच्चा जो होता है वो इतना प्योर होता है, वो इतना इनोसेंट होता है, वो इतना खुद में गुड होता है कि उसे लगता है कि सारे लोग वैसे ही हैं. वो कभी पहचान ही नहीं पाता है कि वो जो ग्रोन अप पीपल हैं जैसे वो दिखते हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं है. तो कह रहा है क्या जिस दिन उसे ये रियलाइज हुआ कि जो ग्रोन अप पीपल हैं जो जैसे दिखते हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं है, दे आर द पीपल हु आर हैविंग डबल फेस, कि जो लोग दिख रहे हैं इनके दो चेहरे हैं, ये जो ग्रोन अप पीपल के, एक्चुअली दे आर हिपोक्रेट. वो हिपोक्रेट हैं. हिपोक्रेट यानी कि ढोंगी, पाखंडी, एब्सोल्युटली different what they look and what they do, use difference in their doing and use different in their saying. They speak of good but they never do good. They speak of lovely things. They have a smile on their own face but they have a long dagger hidden beneath their clothes, their clothing articles. तो कह रहा है कि जिस दिन मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ये जो ग्रोन अप पीपल हैं ये जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया. देखिए जहाँ पर वही चीज वो रैशनैलिटी को दिखा रहा है कि क्या उसकी जब ये समझ बढ़ी, उम्र के साथ जब उसकी ये समझ बढ़ी कि जो उसके अगल बगल के उसके आसपास के जो ग्रोन अप लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जैसे वो दिखते हैं वो वैसे हैं नहीं, दे आर हिपोक्रेट. तो क्या उस दिन उसका बचपन चला गया? आगे देखते हैं. They talked of love and peace. They talked of love and preached of love. कह रहा है वो बातें किसकी करते थे बचपन में, वो अपने बड़े लोगों को जो सुनता था तो किसकी बातें करते थे कि वो लव की बातें करते थे. दे प्रीच का मतलब होता है कि जो बहुत ही अच्छे जो है शिक्षाप्रद बातें करते हैं, शिक्षा देने वाली बातें करते हैं, उपदेश देते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए. वी शुड बी गुड, we should be good to one and all. We should not do injustice with this and that. We should treat one and all equally. Why? Because no one is great, no one is small, all are equal. But when it is time for them to practice or just implement their thoughts into action, they do the opposite. They do horrible things. कि वो बातें कैसे करते हैं कि सब बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है,
जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो कितने हॉरिबल होते हैं वो, क्या वो इम्प्लीमेंट करते हैं? नेवर. But did not act so lovingly. Was that the day? फिर was that the day repeat कर रहा, तो कह रहे हैं कि वो अपने बचपन में अपने बड़ों को सुनता था, कैसी बातें करते हुए? अच्छी बातें करते हुए. That we all are equal and we should love one and all and we should not hate one and all, or we should not hate this person or that person. We should not just respect a person bearing in mind the social standing of that person, bearing in mind the look of that person or the status of that person or the position of that person, but only because he is a kind of a human. He is just a human being. So being human being, one human should love the other, and one human should treat all human equally without bearing in mind the caste,